Audio Jungle. Okay. So let's continue where we are. We were watching, we were understanding the while loop and do while loop. Okay. So I was just about to finish do while programming, right? So let's continue with doing that. Okay. So uh, here I can declare one more variable. Okay. For do, right? int do cnt I can say. Okay. Okay. And this variable I'll initialize here do cnt equal to 10. I'll do reverse here. Okay. Or we can, okay, no plus plus I done. So I'll do same program condition copy, okay, shift insert. Do cnt is a variable, counter variable. There is no question on that. Okay. Yeah. You can keep, I, j, k, x, y, z, anything. I just or else I'll take cnt1. Okay, don't worry. cnt1. cnt1. Okay. So here I have to print no1 multiply by cnt1, and this is step 3. Okay. And the last phase of our do while is do while at the end and write a condition here. Okay. And condition is I is less than or equal to 10. Okay. So let's see. Alt F9, one error. Manish, you were asking, right? Semicolon लगता है कि नहीं लगता है? Yeah, semicolon लगता है. See, compiler give you all, mistake you done, right? So don't worry about it from doing the mistake. To just clarify you that after while, do while, semicolon is required or not, I just purposely skip that and I compile that. It gives me error. Now I'll recompile. It gives me 0 error, 0 warning. It's ready to go. Okay. Just give me a second. Okay. So here, what we are doing, so this program is very interesting, right? It has all sort of loops in one program, a simple concept, simple program, but explaining entire loop. What happened? Yeah, here, okay. See, first loop gives me horizontal 2 का table. Second while loop gives me vertical 2 का table. Last one 3 it printed, but उसके बाद में कुछ किया ही नहीं उसने. क्या हुआ? क्या हुआ? What is mistake? Don't type chat if you know. प्रिंट नहीं किया उसने अपना आउटपुट, सिर्फ वो 3 का प्रिंट किया और उसके बाद में कुछ नहीं किया उसने. ये अपना आउटपुट है. 6 की. Sir, we have not incremented it. क्या क्या हुआ?
year statement. आवाज थोड़ा सा जोरात, आवाज येत नाही ना. Increment, where to increment? Yes, that is one problem. Okay, let me write here step 1, step 1, then this is step 2, comparing with previous two loops. Okay, this is step 3. Where is step 4? Step 4 is not there. To which variable we have to increment? Which is loop counter variable? CNT1. CNT1 loop counter variable is very important. CNT, okay, I'll make it plus plus. Okay. So now let's see अभी क्या होता है. All step done, and this is outside of do while loop. Let me copy as usual. Control insert. Insert. Outside do while loop. Okay. Now let's run this program. Control F9. 2 का टेबल आया. हॉरिजॉन्टल मीन्स फॉर लूप चल गया. वर्टिकल आ गया मीन्स while लूप चल गया. स्टेप 5 3 प्रिंट किया उसने फर्स्ट टाइम एंड it directly came out. What happened outside of do while loop? Yeah, there, please speak out. I cannot see your chat. Now you have to speak. Otherwise I have to, do like this. Then I can see your chat. I की जगह पे CNT1 है. Yes, that is silly mistake that we did because of copy paste. बट वो समझना जरूरी है. बीइंग अ प्रोग्रामर वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो दिस आई इज फॉर लूप वाला आई था, वो यहां पे क्यों यूज करना है? इसका काउंटर वेरिएबल, दिस इज अ काउंटर वेरिएबल, यू कैन ट्रीट दिस एज अ काउंटर वेरिएबल. ओके, अगर आई को यूज करना है तो आई को रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा मेरे को इधर, एंड देन इट विल वर्क. ओके, स्टेप 1 में इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो आइदर यू यूज CNT1 और आई को यहीं पे रखना है तो ये CNT1 को रिप्लेस करके यहां पे i इक्वल टू 1 कर दो तो भी चल जाएगा. राइट, सो आई एम नॉट विल डू 1 by 1. ओके, सो लेट्स रीरन अगेन. कंट्रोल F9. 2. हाँ, क्या हुआ? ऊपर का चला गया स्क्रीन प्रिंट करके, और फिर उसने सेकंड लूप लिया while लूप वाला, उसको प्रिंट किया 2 का टेबल वर्टिकली डाउनवर्ड आउटसाइड ऑफ while लूप. देन 3 का प्रिंट किया उसने, क्योंकि NO को प्लस प्लस किया था, NO1 को, राइट, 2 to 3, एंड देन आई आस्क हिम टू प्रिंट 3 का टेबल. सो इट प्रिंटेड 3 का टेबल यूजिंग डू while लूप. ओके, एंड इट केम आउट ऑफ while लूप. सो टू मेक इट न्यू लाइन, इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन आई विल मेक इट space. Control F9. 2. Yeah, now you can see here. Okay. Give me a second. Okay. /n देना मेरे को, एक बस, बाकी कुछ नहीं करना. Okay. Control F9. 2. Now picture is very clear, right? First for loop, just give me a second. Hello, yeah. So is it clear now? Sorry, is it clear everyone? First horizontal tab for loop, vertical while loop,
without tab but one space is do while loop, right? Stepwise there is no difference. The only difference is for loop and while loop both are same. You can use whatever you want, whatever you are comfortable, right? ये अच्छा है वो बुरा है ऐसा नहीं है, दोनों सेम है, सिंटैक्टिकली अलग है, राइट? वे ऑफ वर्किंग इज सेम, वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज सेम. डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में फर्स्ट वो एंट्री करने देता है आपको विदाउट चेकिंग, बट लेटर 2 3 4 ये जो है ये 2 है, सॉरी दिस इज 3 राइट एंड दिस इज 4. या सो एक बार आने के बाद में पहले इनिशियलाइजेशन किया, फिर वो 1 3 4 2 ऐसा फर्स्ट टाइम लेता है, बट उसके बाद में 2 3 4 करता है. 2 3 4 कंडीशन चेक, 2 3 4 इस तरह से एग्जीक्यूशन करते रहता है. अंडरस्टैंड? तो डू व्हाइल कब आप यूज करना है? डू व्हाइल तब लगेगा जब आपको फर्स्ट टाइम यूजर को अलाउ करना है अपना स्क्रीन विदाउट एनी वेरिफिकेशन, राइट? जैसे आप समझो आईसीआईसीआई बैंक में जाते हो आप, तो वहां पे एक पैनल रहता है, राइट? एक मशीन रहता है जहां से वो टिकट देता है आपको. सो दैट टिकट आस्क यू योर अकाउंट नंबर एंड अदर स्टफ. It will be printed, it will be given an interface कि which option you want to prefer. तो ये which option you want to prefer is given by default without asking any of your identity. आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको कैश अकाउंट ओपन करना है, आपको डीमैट ओपन करना है, राइट? आपको डीडी निकालना है, आपको होम लोन का है. सो ऑल दोज ऑप्शन वर प्रिंटेड फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर यू कस्टमर और यू नो ऐसा जब पूछता है वो, तो वो जो कस्टमर और वो पूछता है ना, वो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, राइट? जब बाय डिफॉल्ट आपको कुछ दिखाना है यूजर को विदाउट वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम, उस समय आप हमको डू व्हाइल यूज करना पड़ता है, बिकॉज ये ऐसा एक ही लूप है जहां पे फर्स्ट इटरेशन विल बी अलाउड बट नेक्स्ट इटरेशन विल नॉट बी अलाउड. समझ में आया? ओके. So any doubt in this? Any doubt? Now let's go back on the PPT once again and check where we are. Now see. Observe it carefully. लेफ्ट साइड वाला जो है व्हाइल लूप, वो काम करेगा आपका 1 2 3 4 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऑनवर्ड 2 3 4 2 3 4 2 3 4, राइट? और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो 5 पे आके आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट? इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप राइट साइड ऑफ आवर पीपीटी, फर्स्ट टाइम आएगा 1 करेगा 3 करेगा, there is no 2 is downside, okay? that is the feature of do while कि फर्स्ट टाइम वो अलाउ कर रहा है. जैसे आपने बैंक में गए, हॉस्पिटल में गए, एक पैनल रहता है आपको आजकल, राइट? कि आपको क्या करना है, आईपीडी चाहिए तो आईपीडी यहां से राइट डायरेक्शन में जाओ, यहां पे जाओ, इस फ्लोर पे आपको मिलेगा, या वहीं पे वो आईपीडी भी दे देता है कभी कभी, इनवर्ट पेशेंट केस पेपर बोलते हैं ना हम लोग, राइट? सो 1 फर्स्ट टाइम अलाउड बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड 1 3 4 ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करता है वो. उसके बाद में नॉर्मल कंडीशन में चालू होता है 2 3 4 2 3 4 2 3 4. एनी डाउट इन दिस लूपिंग? राइट? एनीबडी? या थैंक्स अमीन. So this is a big concept as such. If you understand this, you understand the basic, major part of the programming. Okay. Rest of the features of the programs, right? Pointers, functions, union, struct, static, register, and this and that, right? You can learn it. But this, the loops, while loop, if, switch, okay,
if you understand this, you can start writing the programs in real time. Okay, so I think that is why, we invested almost 3 lectures on this, and we will do one more program today. That is the one that I ask you all to perform as an exercise. कितने लोगों ने किया वो टेबुलर वाला हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग, टेबल फ्रॉम 2 to 10 लेफ्ट टू राइट? कितने लोगों ने किया? फर्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड. There you are, good. I like that. So my second question was about that. How many of you tried but not succeeded? I mean, tried, good. Oh, Deepali also tried. Okay, they are tried already. Oh, many of you tried, but couldn't succeed, Oh, so let's do that, right? It's interesting. It's going to be interesting. Let's do that. Even I have not done it. It's not like that, I'm very, very prepared and I'm just typing in front of you. It's not like that. I also think, as you already thought, right? So yeah, raise down your hand. So let's do together, do the mistakes, right? And correct it and make the program successful in whatever time we have right now. Okay. So let's start now. So any doubt on this program? For loop and this one? Okay, so let's try out new program. New, okay. F5 hash include stdio.h. See, doing practical as well as practical plus theory will lower speed of learning, right? And that is what will happen with us, right? बाकी जगह पर आपने देखा होगा कि theoretical concept पढ़ाने के लिए कोई और होता है, practical पढ़ाने के लिए कोई और होता है, and you cover a lot of concepts in one theoretical session, right? But यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आगे का सेशन नहीं ले रहे जब तक हमारा पीछे का क्लियर नहीं होता है, and I think that is worth. Okay. So यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? एक यूजर से नंबर लेना है और वहां तक अपने को 2 onwards वहां तक प्रिंट करना है वैल्यू. दैट वाज आवर प्रोग्राम, राइट? और 2 to 10 समझते हैं हम लोग. int no1 scr printf please enter number colon double colon then scanf person d address of यहाँ तक अपना अभी बेस हो गया. अभी अपने को लॉजिकल लिखना है यहाँ पे, राइट? तो लॉजिकल, ये प्रोग्राम अपने को कैसा चाहिए था? ये प्रोग्राम अपने को कैसा चाहिए था वो मैं आपको जस्ट एक बार रिपीट करता हूं उसके लिए. व्हाट वाज आवर गोल, राइट? सो हमको चाहिए था 2 4 ये ऐसा चाहिए था, एंड देन 3 4 and then 3 to the 6. ये सब प्रोग्राम आपने को चाहिए था इसका, राइट? ओके, so this is what we were expecting. अगर यूजर 4 डालता है
तो हमको उसको 2 3 4 ऐसे प्रिंट करके देना था अपने को, राइट। तो इसका लॉजिक मेन क्या है, जो आउटपुट स्क्रीन है अपनी ब्लैक स्क्रीन, वो हमेशा प्रिंट करती है। लॉजिकल थिंकिंग ये है इसमें मेन कि ये हमेशा टॉप लेफ्ट से राइट तक प्रिंट करती है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे वो वापस सेकंड लाइन पे आती है और फिर एंड तक प्रिंट करती है। उसके बाद में तो ऑलवेज प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन और एनी कंप्यूटर डिवाइस विल हैपन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो आपको अगर 2 3 4 का टेबल लिखना है तो आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई 2 के बाद में मेरे को पहला 3 प्रिंट कर, एक लाइन हो गई मेरी, राइट, 10 तक। उसके बाद में न्यू लाइन पे आ, और न्यू लाइन पे उसका नेक्स्ट जो नंबर है इसका 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये यहां पे लेके आना पड़ेगा। तो ये इसका बेस है। दिस इज नॉट सिंपल, ओके, but we will try to achieve it. That for those who tried, I'm really appreciating for all of those guys, right? So at least आपने try किया। Try करना is very important. Doesn't matter you succeed or not, right? So so let's try to see if we can achieve this program, okay? इसको 2 लूप लगने वाले हैं हमें, राइट। int int I इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है। देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं, ओके। आई ऑल्सो नॉट मैंने इसको प्रोग्राम को याद नहीं किया कि ये ऐसे ही करना है बोलते। आई इज लेस देन और इक्वल टू 2 से लेके NO1 तक करना है, इतना तो पक्का है, राइट। एक मिनट, 2 से लेके NO1 तक करना है अपने को प्रोग्रामिंग टेबल्स, राइट। तो अभी कैसा करते हैं वो देखेंगे अपन। I प्लस प्लस, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, दूसरा फॉर लूप लिखना है। फॉर int j इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये अगर क्या कर देगा देखेंगे अभी अपन, ओके। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड जस्ट टू शोकेस की आई एम वेरी होशियार और वैसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो डूइंग इन द सेम वे दैट यू डन, राइट। आई नॉट डन दिस एक्सरसाइज इन since last yesterday session, okay. So let's try out printf %d, okay. यहां पे अपने को क्या करना है, j को इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, j इक्वल टू 1 को इनिशियलाइज किया, ओके। अब यहां पे मेरे को i और j ये 2 वेरिएबल मेरे ड्राइविंग फैक्टर है। i चलेगा कब तक, NO1 तक। NO1 अगर मैंने 4 डाला तो i बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होगा 2 पे, क्योंकि मैंने बोला है 2 3 4 4 तक चलेगा, राइट। एक काम हो गया अपना कि वो 2 जितना डालेगा वैल्यू वहां से वहां तक, 2 से लेके वहां तक टेबल वो प्रिंट करेगा, राइट। तो टेबल प्रिंटिंग का लॉजिक तो अपना रेडी है, नीचे वाला लूप, राइट। अगर मैं इसको j मल्टीप्लाई बाय NO1 करता हूं, सॉरी, तो ये क्या देगा, NO1 वाला मेरे को लूप देगा ना। ये एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। एक सिंगल लूप लिया मैंने, नॉट नेस्टेड, नॉर्मल लूप। इसको टैब देता हूं, और इसको गेट ch, कंट्रोल F9, 4 किया मैंने। 4 का टेबल तो आ गया, मतलब मेरा अंदर वाला जो लूप है वो मेरा सही हो गया है, राइट। नाउ आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक। अभी अगर मैं दूसरा डालता हूं, 2 का डालूंगा तो 2 का मेरे को दे दिया उसने। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इनर लूप, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने यहां पे NO1 लिया। बट अभी अपने को ये रिक्वायरमेंट नहीं है, अपना रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर मैं 3 डालूंगा तो 2 और 3 का टेबल प्रिंट होना है। तो 2 और 3 का प्रिंट होने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं 20 डालूंगा, 2 से लेके 20 तक का टेबल प्रिंट होना है, तो एक लूप तो लगेगा मेरे को डेफिनेटली, राइट। सो
एक लूप डाला मैंने जो 2 से इनिशियलाइज किया और NO1 तक चला। ओके, अब यहां पे क्या प्रिंट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रिंटिंग विल हैपन ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी दिमाग में रखना है अपने को, राइट। तो यहां पे J है और इसको मैंने NO1 किया। अभी इसको ही ऐसे अगर चलाते हैं हम लोग तो ये क्या देता है वो देखेंगे, इट विल ड्राइव अस। यहां पे मैंने 3 दिया, क्या किया उसने, सेम सेम प्रिंट किया 2 बार, क्योंकि 2 आई ऊपर वाला बाहर वाला जो लूप है वो एक बार चला 2 के लिए, दूसरी बार चला 3 के लिए। बट अंदर में क्या प्रिंट किया हमने, NO1 प्रिंट किया। NO1 मतलब जो यूजर से एक्सेप्ट किया, उसको अगर हम लोग आई डालेंगे, आई मतलब क्या है, पहली बार 2 होगा, दूसरी बार 3 होगा, राइट। और यहां पे आप बोलोगे ये तो एक ही स्टेटमेंट है, नेस्टेड कैसा क्या हो गया। फॉर लूप के बाद में, कंडीशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इधर लूप है, सॉरी फॉर लूप है, राइट। फॉर लूप, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ये कितनी बार चलेगा, ये 10 बार चलेगा। तो 10 बार तक ये चलेगा, ये रुका रहेगा। 10 बार जब J इक्वल टू 1, J इज लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू होगा, तो ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा वापस, ये J प्लस प्लस होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये ऐसे 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 करेगा। जब तक J 11 नहीं होता तब तक ये इसका दूसरा इटरेशन नहीं होगा आउटर लूप का, राइट। और एल्स यू कैन राइट डाउन इन बेस एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, which is neat programming actually, that's not a problem, but this style is also okay. आप ऐसा भी कर सकते हैं, this is nothing but same much, sorry इसको लिया। समझ में आया कि ये सब सेम है, जो पहले था वो और ये कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ब्रेस डाला है मैंने जस्ट टू मेक यू क्लियर। ओके, अभी मैंने NO1 को I से रिप्लेस किया बिकॉज I इज गेटिंग वैरिड फ्रॉम नंबर 2, 3, 4 अंटिल NO1 वैल्यू रीचेस। अभी देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल F9, इसको मैं 3 डालता हूं। ओ दे दिया, मेरा काम तो हो गया, देखो राइट। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 डालते हैं, इसको 10 डालते हैं, तो क्या हो गया, ये अपना प्रोग्राम हो गया नेस्टेड लूप वाला, राइट। अभी बट ये अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज समथिंग डिफरेंट। डू यू रिमेंबर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है अपना, वर्टिकली डाउन चलना चाहिए, उसने 2, 3 चलना चाहिए, राइट। उसके बाद में 2, 4, 6, 8 ऐसा चलना चाहिए। वो कैसे अचीव करेंगे, एनी आइडिया? सॉरी, क्या आइडिया लगा सकते हैं हम लोग यहां पे कि यहां पे 2, 3, 4 वैसा चले। पहली बार अगर मैंने 2 डाला इधर, सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ लॉजिक, ओके। मैंने 2 डाला ऊपर, तो पहले इसमें उसने 2, 3, 4, 5, 6 देना चाहिए, राइट। सो 2 1 जा 2, 2, यहां का पैटर्न आप देख लीजिए एक बार, यहां पे क्या हुआ, जो प्रीवियस वैल्यू है वो कहां रखेंगे हम लोग उसको, राइट। तो ये तुम कहां अटक देते,
Clue 2. One, two, two, three, four, five. So just give me a second. Can you just think? Meanwhile, I also think on this. Try out now. We have to achieve this. हेलो सर। सर मनीष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मनीष भाई। ये फॉर लूप है ना जो फर्स्ट वाला आई का, उसके अंदर प्रिंट नंबर 1 मतलब जो आई रहेगा ना उसको प्रिंट करेंगे फर्स्ट फॉर लूप में पहले ही। इस पहले वाले को यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, हाँ यहाँ पे क्या करना है? आई को प्रिंट करेंगे हाँ और उसके नीचे फिर ये जो दूसरा फॉर लूप है उसके अंदर वो टू मतलब सेकंड जो जे का फॉर लूप है उसमें इंट हेलो सर। हाँ एक मिनट ना। हाँ बोलिए। जे का जो फॉर्मूला जो सेकंड फॉर लूप है ना, हाँ जे का क्या करना है? जो नहीं वहां पे नहीं, सेकंड वो ब्रैकेट के अंदर कहाँ पे? एक स्टार्टिंग ब्रैकेट जैसे ही हाँ वहां पे हाँ वहां पे इंट नम वेरिएबल लेना है क्या? सर मैं एक काम करूँ क्या, जो मैंने फंक्शन लिखा है ना फॉर हाँ लूप का हाँ उसको ग्रुप में सेंड करता हूँ। पेस्ट करो ना, पेस्ट करो, पेस्ट करो यहाँ पे चैट में क्या? चैट में पेस्ट करो। मैं देखता हूँ उसको फिर। ठीक है ठीक है। हाँ चैट में पेस्ट करो उसको। दिस इज गोइंग टू बी गुड एक्सरसाइज which is based on the loop, but you have to apply your brain to achieve this kind of program. आप पेस्ट करो तब तक मैं ट्राई करता हूं एक।
इसको क्या करना है, ये मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूं अभी। मनीष आपने भेजा तो मेरे को जस्ट बताओ मेरे को ओरली अनम्यूट करके, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन बिगर सो दैट एवरीबडी कैन सी। ओके हाँ सर ठीक है चलेगा। तो यहां पे मैंने जे लिया, जे को ये जे को चलाना है मेरे को, उल्टा करते हैं इसको। ये बाहर वाला लूप 10 बार चलेगा। ओके अंदर वाला लूप NO1 तक चलाते हैं। ओके और यहां पे प्रिंट करते हैं इसको। ओके अभी देखते हैं इसको क्या होता है। तो इसको क्या होगा, i इक्वल टू 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय जे मतलब 2 3 4 ऐसा प्रिंट हो गया। ओके गुड। फिर 2 हो गने के बाद में ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय इससे काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट रन करके देखते हैं। 3 2 4 6 क्या हुआ ये 2 4 6 3 4 आना चाहिए था। एन देता हूँ मैं सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई क्या हो रहा है। 3 2 3 4 आना चाहिए था इधर, 2 3 4 आना चाहिए था और 2 3 4 5 6 7 9 10 क्या वैसा हो गया। 2 4 6 3 6 9 कुछ तो गलत हो गया ये। अरे 2 को किया था ना मैंने, इसको 1 करना पड़ेगा। सॉरी यार इसको 1 करना पड़ेगा। इसको 1 करता हूँ मैं, अभी देखते क्या आता है। 3 लिया, 1 का आया 2 4 6 8 10 12 3 6 9 12 14। ओके 1 का मेरे को नहीं चाहिए तो इसको मैं 2 करता हूँ, 2 से लेकर n तक करूँगा और फिर मैंने प्रिंट किया और मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 2 4 6 8 10 12 30 20 30। फिर मैं डालता हूँ 9 5 5 हो गया। अभी क्या हो गया, ये 10 बार प्रिंट किया मैंने, बट नीचे वाला लूप कितने बार चलना है। हाँ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक्चुअली ट्वीक है एक्चुअली। ओके एक मिनट मैं फिर से इसको रन करता हूँ सो दैट आपको मैं इजीली समझा सकूं। ये देखिए ये क्या हुआ, ये अपने को एक्सपेक्टेड था राइट। मनीष मेरा प्रोग्राम हो गया शायद, आप देख लीजिए। मैंने 3 डाला तो उसने पहले लाइन पे क्या प्रिंट किया, करना चाहिए अपने हिसाब से 2 और 3 प्रिंट करना चाहिए। अगर मैंने 4 डाला तो उसने 2 3 4 प्रिंट करना चाहिए राइट पहले लाइन पे। तो अभी वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, यहां पे आया मैं i इक्वल टू 1 i लेस देन 10 तो
ये 10 बार चलेगा। ओके, ये बाहर वाला लूप, क्योंकि उसको 10 बार वर्टिकली प्रिंट करना है नीचे तक, हॉरिजॉन्टल। सर हाँ मैं यही लॉजिक बता रहा था आपको, मैंने चैट में सेंड किए। अच्छा अच्छा, दिखाओ, एक मिनट देखता हूँ। नहीं ठीक है, फिर वो समझने में हो सकता है गलती हो जाए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मनीष क्या बोल रहे हैं? लेस देन आई इज लेस देन NO1। ओके, हाँ बराबर है। प्रिंट नहीं, ये लॉजिक गड़बड़ हो रहा था मनीष। परसेंट आई, ये तो एक बार प्रिंट किया तूने, फिर आपने क्या किया, j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू NO1, j प्लस प्लस इंट NO2 इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय i। एड्रेस ऑफ NO2 नहीं देना रहता है मनीष, वो सिर्फ एड्रेस एम्परसेंड स्कैनफ में यूज करते हैं, नॉट इन प्रिंटफ। प्रिंटफ में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हाँ, बट इसमें क्या होगा ना, इसमें वो आउटपुट, वो ऊपर वाला जो प्रिंट है ना, ऊपर वाले फॉर लूप का NO1 वाला, वो प्रिंट का जरूरत नहीं है, बाकी ठीक है। सर वो रो में प्रिंट, वो करने के लिए जैसे 2, उसके बाद 3, फिर 4, उसके लिए वो प्रिंट रखा है मैंने। और उसके जो नीचे वाला फॉर है उसमें टेबल प्रिंट करने के लिए रखा है। हाँ ठीक है, बराबर है, फिर चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो वी अचीव द प्रोग्राम, दैट्स गुड। सो जिसने ट्राई किया लेकिन उनका नहीं हुआ, जैसे ध्येय ने किया, नगमा ने किया, राइट, एंड आप इसका लॉजिक समझ लो। लेट मी रन इट इन व्हाट आई कैन से। एक मिनट, अपने को ये प्रिंट कैसा करना है वो मैं आपको जस्ट फिर से एक बार बताता हूं। मैंने अगर 3 नंबर डाला तो इसने 2, 3 एक लाइन पे प्रिंट करना है, फिर 4, 6 दूसरे लाइन पे प्रिंट करना है, 6, 9 तीसरे लाइन पे, 8, 12 ऐसे प्रिंट करते जाना है उसको। ओके, तो ये लॉजिकल थिंकिंग है, और ये जब अपने को जमना चालू होता है तो आप मास्टर बनना शुरू होते हो, राइट। और सी में ऐसे प्रोग्राम बहुत है जो आपको करना है, राइट। स्टार स्टार के होते हैं, ABC के होते हैं, कैपिटल A के होते हैं, रिवर्स होते हैं, प्राइम नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत सारे। ओके, ये एक छोटा सैंपल लिया अपन ने। ओके ओके, सो यहां पे हमने क्या किया, हमने पहले, अगर हमने देखो अपना आउटपुट आप ख्याल में रखो। पहला तो अगर मैंने NO1 लिया 3, तो पहले लाइन में कितना प्रिंट होगा, 2 और 3 होना है, राइट राइट। तो जो पहले लाइन में प्रिंट होना है वो इनर फॉर लूप में आएगा। ओके, और वो कितने बार होना है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में उनका डबल होना है, राइट, दैट इज मल्टीपल, राइट। जैसे अभी फर्स्ट लाइन आया, NO1 लिया मैंने 3, लेट मी रन इट, एक्चुअली वॉच विंडो डाल के देखते हैं। हाँ, यहां पे 3 डाला, इसको मैं वॉच विंडो ओपन करता हूं। ओके, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, आ है मेरे पास, J को डाल देता हूं मैं, J। ओके, हाँ, अभी आप देखना इधर, सॉरी F8। हाँ, अभी क्या हुआ, NO3 यूजर से लिया अपन ने, I को इनिशियलाइज किया मैंने 1 पे, और J अभी कितना है, कुछ नहीं, गार्बेज है वो। ओके, अभी J एक्चुअली इनिशियलाइज हुआ। ओके, अभी क्या हुआ, हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट F8 प्रिंट किया उसने, प्रिंट क्या किया उसने, J मल्टीप्लाई बाय I। J क्या था, अभी 2 है, जो मेरे को पहला वैल्यू चाहिए था, वो प्रिंट किया उसने, राइट। और J को प्लस प्लस किया, ये दोनों काम कर दिया उसने। अभी तो अल्टीफाई करके जाता हूं मैं, देखो 2 को प्रिंट किया, J को प्लस प्लस करके 3 पे रखा है। ओके,
अभी वापस प्रिंट के लिए आए हम लोग, वो बहुत फास्ट करता है, वो जो स्टेटमेंट रहता है ना, इंक्रीमेंट कंडीशन चेक और फिर वापस प्रिंट करना, ये बहुत फास्ट होता है, इसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा वो। ओके, यू हैव टू अज्यूम इट। तो अभी जे का वैल्यू कितना है, 3 है, राइट। तो 2 के बाद में 3 अपने को चाहिए था, वो आ रहा है, तो उसको लिया मैंने। अभी वो लूप खत्म हो गया। ये कितने बार चला लूप, 2 और 3, ये 2 ही बार चला अंदर वाला लूप, लेकिन बाहर वाला लूप अपने को 10 बार चलाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक टेबल बनना चाहिए ना अपना। अभी देखना, अभी क्या हुआ, अल्ट F5 करता हूं, ये दोनों प्रिंट किया, आगे टैब देके रुक गया है वो। मेरे को आगे की वैल्यू जो 4 आने वाली है वो नए लाइन पे चाहिए मेरे को, इसके लिए मैंने यहां पे नया लाइन दिया है। अभी देखो क्या हुआ, ये कर्सर आके बैठा नए लाइन पे, राइट। अभी वैल्यू कितना है, NO1 का 3 है, NO1 को कोई चेंज नहीं किया अपन ने। ओके, सो इस तरह से प्रिंट एफ परसेंटेज जे कितना हुआ, 2, राइट, I 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 6 प्रिंट किया। अभी देखना, राइट, इस तरह से ये लॉजिकल चलेगा। सो लेट मी रन क्विकली बिकॉज आवर रिकॉर्डिंग टू स्टॉप। स्टॉप हो गई है।